انڈیا کا امیج ہمارے مائنڈ میں بنا دیا گیا ہے کہ انڈیا ایک اینٹی مسلم کنٹری ہے اور وہ مسلم کو رائٹس نہیں دے رہا. پر میرے خیال میں کہ مین رائٹس یہی ہے کہ آپ کسی کی مالی امداد میں مدد کر سکے, جیسے کہ ان پہ بہت برا وقت آیا ہے. تو اس طرح بہت سے ممالک کو چاہیے تھا کہ ان کی مدد کرے, لیکن انڈیا اس معاملے میں بہت آگے تھا. دیکھیں وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت ہے, تو اگر انہوں نے کیا ہے تو اس چیز پہ انہیں اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. انڈیا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے تو لٹرلی آئی وانا اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. لیکن پاکستانیوں کو بھی کہوں گی, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پورا پاکستان رونگ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کافی زیادہ ایک جو کہتے ہیں کہ سنگل پرسن نے کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے ترکی اینڈ شام کے لوگوں کو. ہماری تو فورن پالیسی انڈیا کے خلاف بنتی ہے. انڈیا تو پاکستان پہ نہیں وہ کرتا کہ اپنی ان کی فورن پالیسی یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے بنائیں کہ وہ پاکستان کو دیکھیں. وہ اکانومیکلی چلتے ہیں, وہ چائنا کو بھی دیکھتے ہیں, وہ انڈیا کو پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. ہماری جو پالیسی ہے وہ انڈین سینٹرک ہے. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, زلزلہ متاثرین ترکی نے مدد کا ہاتھ بڑھانے پر ہندوستان کا شکریہ ادا کیا ہے. ترکی کی عوام نے ریسکیو اینڈ ریلیف امداد فراہم کرنے پر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے. 6 فروری کو ترکی اور شام میں بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آیا تھا, جس کے ایک دن بعد ہی ہندوستان نے آپریشن دوست شروع کیا. ٹنوں کے حساب سے امداد وہاں پر پہنچائی, ڈاکٹر وہاں پہ پہنچائے, یہاں تک کہ وہاں پر فیلڈ ہاسپٹل بھی قائم کیے. 10 دن کی خدمات سر انجام دینے کے بعد انڈیا کی جو ریسکیو ٹیمز تھی وہ ہندوستان واپس پہنچ چکی ہیں. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد یاسر. سر, آپ کو پتہ ہے کہ 6 فروری کو ترکی اور شام میں بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آیا تھا, جس کے بعد ایک دن کے بعد ہی انڈیا کی طرف سے ہندوستان کی جانب سے دوست آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا. انڈیا نے وہاں پر ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ امداد بھجوائی, وہاں پر اپنے آرمی کے جو ڈاکٹرز تھے وہ بھجوائے, ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیمز وہاں پر بھجوائیں, وہاں پہ فیلڈ ہاسپٹل قائم کیے. اور اب جو ہے ترکی کے جو لوگ ہیں, جو متاثرہ لوگ تھے, وہ انڈیا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, انڈیا کے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, انہوں نے تو ہیلپ کی بھی ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے انہیں, کیونکہ یہ قدرتی آفات ہیں, بائی نیچر ہیں, یہ کسی پہ بھی آ سکتی ہیں. تو اگر ان پہ, کیونکہ ویسے تو وہ ترقی یافتہ ممالک تھے, مطلب ترکی تھا یا شام تھا, ٹھیک ہے, تو اگر ان پہ یہ آفت آ گئی ہے تو یہ خدا کی ہے ہوئی آفت ہے. اگر اس پہ انڈیا والوں نے چاہے جو بھی ممالک ہیں جنہوں نے بھی ہیلپ آؤٹ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ 10 دن کے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کرنے کے بعد انڈیا کی جو ٹیمز تھی وہ ہندوستان واپس پہنچی ہیں, اور بڑا پراؤڈلی واپس گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا اس سے بڑھ کر مدد کی ہے. دیکھیں وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت ہے, تو اگر انہوں نے کیا ہے تو اس چیز پہ انہیں اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, انہوں نے اچھا کیا ہے. اور اب اگر ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں پر وزٹ کے لیے گئے ہیں, اور پتہ آپ کو وہاں پہ کون سی امداد لے کر گئے ہیں؟ وہ وہی امداد لے کر گئے ہیں جو ترکی نے پچھلے سال پاکستان کو دی تھی سیلاب زدگان علاقوں کے لیے, جو سیلاب سے یہاں پہ متاثر ہوئے تھے لوگ, ان کے لیے. مطلب کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ ترکی کی دی ہوئی امداد اٹھا کے ترکی کو واپس دے آئے ہیں. اچھا, اگر ہم اپنے پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کریں تو میں بھی بیسیکلی اسی علاقے سے ہوں جہاں پہ یہ ریسنٹلی ابھی سیلاب آیا ہے. تو وہاں پہ نا بھی یہی پرائم منسٹر, ان کی جو ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ بھی آئی تھیں. تو انہوں نے باہر کے ملک میں جا کے کیا امداد کرنی تھی, انہوں نے اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا. ہمارے لوگ 15 سے 20 دن تک روڈوں کے اوپر پڑے رہے تھے, لاوارث پڑے رہے تھے, ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی. تو یہ لوگ کئی 1.5 ماہ کے بعد شاید ان کا چکر لگا تھا ادھر علاقے ہمارے میں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے کیا چٹخارے ہی تقسیم کیے, اور کوئی بڑا پروجیکٹ یا مل کے کوئی گھر بنا کے دینا یا جس طرح کے امدادی کاروائیاں ہوتی ہیں, تو حکومتی سطح کے اوپر کوئی امدادی کارروائی نہیں کی گئی. بہرحال یہ ہے کہ جو الخیر فاؤنڈیشن ہے یا جامعہ صوفہ والے ہیں, تو مل کے فلاحی ادارے جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے جتنی سپورٹ ہو سکی انہوں نے کی ہے, لیکن حکومتی سطح پہ بالکل کوئی پروگریس نہیں ملی, اور عوام لاوارث عوام دیکھتی رہی, لیکن انہیں جو ہے نا کوئی. انہوں نے خود تو کوئی مدد کی نہیں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی, ان کے لیے جو مدد آئی وہ بھی انہوں نے ان تک نہیں پہنچائی. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری حکومت کے اوپر کہ جو ترکی نے ہمیں امداد بھیجی تھی, جو ٹینٹس بھیجے تھے, جو ترپالیں بھیجی تھی, وہ ہم نے سنبھال کر رکھی. ہم نے جو ہے سندھ کے اور دائیں بائیں کے جو علاقے کے متاثرہ لوگ تھے ان کو نہیں دی, ہم وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور ہم نے واپس الٹا کے وہ ترکی کو دے دی ہے. یہ بیسیکلی دیکھیں ایک اپنی ہی انسلٹ ہے, ہم اپنے ملک کو ہی بلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں اب
कौन क्या कर सकता है ये हमें पब्लिक को ही सोचना होगा। हम आपस में लड़ रहे हैं, इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है, शहबाज शरीफ अच्छा है, मैं तो यही कहता हूँ कि ये इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अगर इमरान खान अच्छा है तो इमरान खान ने हमारे लिए क्या किया है? नवाज शरीफ चलो था ही गंदा, तो अगर इमरान खान अच्छा है तो इमरान खान ने हमारे लिए क्या किया है? हम देखते हैं कि इमरान खान जब से आया है तो महंगाई का बहरान है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग तंग हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हम इमरान खान का पीछा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी कोई फेवर नहीं दी। चले नवाज शरीफ के दौर में और कुछ नहीं तो खाने के लिए तो था कुछ ना कुछ, अब तो गरीब जो है ना रोटी के लिए भी तरस रहा है। ये हमारी सिचुएशन है। अगर सफ़ेद पोशों की तो गरीब का हालत देखें, मैं तो उस इलाके से हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ जो जिनके शाम की है तो सुबह की नहीं है, सुबह की है तो शाम की नहीं है, जिनके पास सर छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब आप देखें, आपने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान इलाके जो थे उनके मुतासरा जो लोग हैं वो कैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और आप जो है इमदाद लेकर जो है तुर्की पहुँच गए हैं। यही आप भला काम करते तो जिन लोगों के लिए इमदाद आई थी उनको दे देते, उनका कुछ भला हो जाता। देखिए बेसिकली ये है कि इनके अपने ही पेट नहीं भरते, तो इनके पास ये होता है कि इनके जहाँ से भी जो कुछ आए पहले अपना पेट भरे, अपना घर भरे, भाड़ में जाए, बाद में किसी के मुंह में कुछ जाए ना जाए, लेकिन इनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो अपने खुद को भरने वाली होती है। उसके बाद ये है कि इनके जो चाहने वाले होते हैं, जो चमचे चेले होते हैं, फिर ये उन तक पहुंचाते हैं, बहरहाल हकदार तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती। और फिर हम एट द एंड कहते हैं कि जी इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है, नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप देख लें कि तुर्की में जहाँ हमें खड़ा होना चाहिए था, इंडिया ने हमसे बढ़ चढ़ कर तुर्की के लोगों की मदद की है। जी बिल्कुल, हमें भी चाहिए था कि हम भी उनकी हेल्प करते, लेकिन हमारे अपने पास आए कुछ नहीं, हम अपनों का कुछ नहीं कर सकते तो हम औरों का क्या जो है ना उनकी क्या हेल्प करेंगे? हमने तो यही करना है, उनका दिया हुआ माल उनको वापस ही करना था, तो जो हमने कर दिया है, जो हमने कर दिया है और ये गलत ही किया है। आपका नाम? कवल अमानत। कवल, आपको पता है कि तुर्की में 6 फरवरी को तुर्की और शाम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आया था। इंडिया ने आगे होके बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है। अब जो तुर्की के मुतासिरा लोग हैं वो इंडिया का, इंडियन आर्मी के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके ये लोग काम आए हैं। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो है वो तुर्की और शाम के जितने लोग हैं उन सबको ज़लज़ला ज़दगान में ओबियसली उन्हें बोलूँगी कि उन सबको हमारी ज़रूरत है। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है, मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है कि किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया है। तो पाकिस्तान के बारे में ये बात सुनेंगे कि जो तुर्की ने हमारे लिए इमदाद दी थी सैलाब ज़दगान के लिए, वही हमने जो है वो कंटेनर्स में वापस उनको भिजवा दी है। अभी मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब हम कॉल करते हैं ना किसी को तो साढ़े बैल लगी होती है कि तुर्की और शाम के जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी मदद करें। भाई हम सिर्फ इतनी इमदाद कर सकते हैं उनकी कि हम सिर्फ कॉल पे रिंगटोन्स लगा सकते हैं या फिर पीछे जो हेल्पलाइन वाले बैठे हैं वो लगा देते हैं जब भी हम किसी को, बस उन्होंने हमें याद दिलाना है कि ये ज़लज़ला आ गया है। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो मुझे शर्म आती है कि अब कहाँ पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़, कहाँ पर हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़, कहाँ पर हैं वो, क्यों नहीं मदद करते हैं? लेकिन अगर इंडिया ने हेल्प आउट किया है तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है तुर्की एंड शाम के लोगों को। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से देख लीजिए जिनसे हमें तवक्कुआत थी कि ये लोग हेल्प करेंगे, उन्होंने नहीं की। यस, आपको पता है तुर्की के लोग दुआएं दे रहे हैं इंडिया को, अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का परचम लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी से मदद करना, मुश्किल में किसी के काम आना है तो आप इंडिया से सीखें। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने घरों पर इंडिया का झंडा जाकर लहरा रहे हैं। नो डाउट उन्होंने हेल्प आउट किया है, बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के लोग भी जो है वो इस वक्त उन्हें दुआएं दे रहे हैं। ऑब्वियसली कि उन्हें देनी भी चाहिए क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि सच्चा दोस्त है, ये हमारे साथ गुजरे। खुशी में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो पाकिस्तान की बार बार बात करूँगी तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम लोग भी काफ़ी सारे क्राइसिस से गुजरे हैं, लेकिन अगर एक थपकी दे दें ना हम लोग, हमारा कोई दोस्त हो साथ, कोई नहीं भी हमें जानता, हमारी क्लास में कोई क्लास फेलो हो, उसको कोई ना कोई मसला, उसको एक थपकी दे दें, उसको थोड़ा हौसला अफजाई उसकी कर देना तो वो कहता है कि यार मेरी आधी टेंशन कम हो गई। अब मुझे ये लग रहा है कि हम उनकी हौसला अफजाई भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें हम लोग? आपको पता है कि इंडिया की जो आवाम है, एक फैमिली के 4 लोगों ने ऑनलाइन उन्हें 100+ ब्लैंकेट भिजवाए हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था कुछ एरियाज़ में तो यहाँ जगह जगह आपको मार्केट में रिलीफ कैंप नज़र आए होंगे, लोग बढ़ चढ़कर इमदाद दे रहे हैं, डोनेशन बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तुर्की वो मुल्क जिसने हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ जाकर पाकिस्तान की मदद की है, जब उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो हम कहाँ थे?
बिल्कुल ऐसा ही है, हम कहाँ थे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी क्यों नहीं लगे ना यहाँ पर? हमें मार्केट्स में कैंप्स क्यों नजर नहीं आए? हमें रिलीफ कैंप्स क्यों नजर नहीं आए? हमें जगह जगह लोग बॉक्स लेकर डोनेशन करते हुए क्यों नजर नहीं आए हैं? शायद लोग इसलिए नज़र नहीं आए हैं, वो शायद वो समझते हैं कि हमारे मुल्क का हमारा मसला है, उनके मुल्क वो जाने, और वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हमारे मुल्क में कोई मसला आए तो वो लोग हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि सैलाब आया तो उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, तो हमें चाहिए कि हम भी उनकी हेल्प करें। अभी मैंने तवक्कुआत की बात की कि हमें उनसे तवक्कुआत नहीं है, मुझे लोगों से तवक्कुआत हैं जो यहाँ पर हमारे कह लें कि जो बिजनेसमैन है, कुछ भी करता है, मतलब जिसके पास इतना पैसा है कि वो बाहर हेल्प आउट कर सकता है। अब मुझे लिटरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और किसी भी बड़े बड़े जो कह लें कि बैठ के हराम खा रहे हैं, बस उनके पेट बाहर को निकले हुए हैं, साफ पता चलता है कि हराम बैठ के खा रहे हैं, उनसे तो मुझे बिल्कुल भी तवक्कुआत नहीं है। लेकिन ये आम पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उनको हेल्प आउट कर सकें, एटलीस्ट आप उनका साथ दें, उनको एक थपकी दे दें, उतनी ही उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि हम लोग खुद क्राइसिस से गुजरे, हमने खुद को भी अपने मामलात को भी फेस करना है, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को भी जो है वो फेस आउट करना है और उनका भी साथ देना है। तो खुद को उलझन में डाला तो हुआ है, लेकिन दूसरों को अगर उलझन में देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें कि उन्हें थोड़ा सा साथ का सहारा मिल जाए। एज अ पाकिस्तानी, इंडिया ने, इंडियन As a आर्मी ने, पाकिस्तानी- इंडियन गवर्नमेंट ने जो वहाँ के तुर्की के लोगों के लिए किया है, आप उस पर क्या कहेंगी? देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी मुल्क को इलेबोरेट नहीं करूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ये कहूँगी कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, लगा लें 4 दोस्त हैं, एक दोस्त मुश्किल में है तो अगर दूसरे दोस्त ने हेल्प आउट कर दी तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी, ख्वाह वो इंडिया का है ख्वाह वो पाकिस्तान का है। तो जिसने भी हेल्प आउट किया है वो अप्रिशिएट देम, और जिसने अभी तक हेल्प नहीं किया उसको ये कहूँगी कि अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा उन्हें जो है वो प्रमोट करें, प्रोसीड करें, हौसला दें। आपका नाम? मुगीस। सईद। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि इंडिया की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी साहब हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो एक एंटी मुस्लिम हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। तुर्की में और शाम में आपको पता है कितना बुरा ज़लज़ला आया, इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है, टनों के हिसाब से इमदादी सामान वहाँ पर भिजवाया। 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे इंडिया की टीम पहुँची है, इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँची है, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स पहुँची हैं और हर तरह से 10 दिन वो उनकी हेल्प आउट करते रहे हैं। और अब तुर्की के लोग जो हैं वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं, इंडिया को, इंडिया की हुकूमत को, इंडियन आर्मी को। क्या कहेंगे आप? इस पर बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे इंडिया का इमेज हमारे माइंड में बना दिया गया है कि इंडिया एक एंटी मुस्लिम कंट्री है और वो मुस्लिम को राइट्स नहीं दे रहा। पर मेरे ख्याल में कि मेन राइट्स यही है कि आप किसी की माली इमदाद में मदद कर सके, जैसे कि उन पे बहुत बुरा वक्त आया है। तो इस तरह बहुत से ममालिक को चाहिए था कि उनकी मदद करे, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे था। तो बस हमारे माइंड में एक इमेज बना दिया गया है कि इंडिया जो है कि वो एंटी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही हमारा राइट बनता है कि एज आ फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले एक तो इंसानियत आ जाती है कि इंसानियत के थ्रू हमें चाहिए कि हम गैर मुस्लिमों का भी उतना ही ख्याल करें जितना हम मुस्लिम्स का करते हैं। तो हमारे तो पाकिस्तान ने वही उन्हें दिया है जो पिछले साल उन्होंने हमें हमारी मदद की थी। तो उनके जब वो डब्बे निकाले गए कंटेनर्स में से तो उन्हीं का सामान निकला है। और बड़े अफसोस की बात है ये। बहुत अफसोस की बात है ये तो। मतलब आप सोचें कि आप अपने एक दोस्त की शादी में गए और आपको एक गिफ्ट देकर आए हैं, वो आपके घर आया और वही गिफ्ट आपके घर लेकर आया, तो सोचें उस वक्त क्या गुजरेगी। हम उसको घर से निकाल देंगे, हम उसको गिफ्ट ही फाड़ देंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बड़ा प्राउडली फिर रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हाथ डाल के। बस अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर ही ऐसे हैं। जिंदगी का तो बाइस है ना ये, मतलब कि वो उधर फिर रहे हैं, लेकर भी कुछ नहीं गए, वही लेकर गए हैं वो जो उन्होंने दिया था। मतलब कॉन्फिडेंट देखें उनका कि कितना है कि वो यही कॉन्फिडेंस हम सबको भी लाइफ में चाहिए। नहीं, ये नहीं चाहिए, मतलब कि उनको इतना तो करना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना इंसान को कि मतलब इतना पैसा तो उनके पास भी पड़ा है, खुद से कर देते कुछ ना कुछ मदद। उधर जाके वो वैसे कह देते कि मैं अपनी तरफ से इतना दे रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से इतना दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। मतलब ये तो नहीं है कि खाली तस्वीरें ले ली लोगों के साथ, तो इस तरह तो कुछ नहीं होता ना, कुछ कर। अब इंडिया ने जिस तरह, इंडियन आर्मी ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया के लोगों ने जो 10 दिन लगातार उनके लिए हेल्प की है, रेस्क्यू एंड रिलीफ की इमदाद फ्राहम की है, क्या कहेंगे आप इंडिया की इन काविशों पर? देखिए, रेस्क्यू टीम तो पाकिस्तान ने भी भेजी है ना। मतलब ये है कि रेस्क्यू टीम तो भेजी है पाकिस्तान ने भी। ये है कि बस पैसा नहीं है तो कुछ दिया नहीं है, जो दिया है वो उन्हीं का ही था। उन्हीं का वापस उनको दे दिया। तो बस यही है कि रेस्क्यू टीम तो पाकिस्तान ने भी दी है, अब देने के लिए कुछ नहीं है तो वो उन्हीं का ही उनको वापस दे दिया है। इंडिया की काविशों पर क्या कहेंगे? इंडिया ने जिस तरह तुर्की और शाम के लोगों की मदद की है, उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी है, आप इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी चीज़ है। देखें, ह्यूमैनिटी पहले है, इंसानियत को पहले देखना है। तो अच्छा काम किया है, पूरी दुनिया को मतलब देखना चाहिए। जो जो नहीं कर रहे उनको भी चाहिए कि करें।
मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, ये तो कुदरत की तरफ से है ना, तो इस पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा जो इन्होंने कहा है कि क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पर आ सकता है। कल को खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए या किसी और मुस्लिम भी कंट्री में हो जाए तो सारी कंट्रीज़ को इकट्ठा होना चाहिए और एक कंट्री की मदद पाकिस्तान करनी में चाहिए। रिसेंटली सैलाब ज़दगान की पूरी दुनिया ने मदद की है, इसी तरह ही तो पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से करें। मतलब पैसा तो हुक्मरानों के पास बहुत है, बस ये बातों तक हैं, बातें करते हैं और उधर जाके सेल्फियां ले लेते हैं बस, और हम खुश हो जाते हैं कि बड़े प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं उधर जाके लोगों के साथ वीडियो बना ली है, बस ये यहीं तक हैं। हमें सोशल मीडिया के पीछे भगा दिया गया। अब देखें हम कि इंडिया ने जिस तरह उनकी बढ़ चढ़कर मदद की है, इंडिया ऑलरेडी ये साबित कर चुका था कि इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हर इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर हैं सिवाय पाकिस्तान के। क्या वजह हमारी उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? वो हमारा तो सबसे बड़ा मसला है ना, हमारी तो जो मतलब पॉलिसीज़ ही इंडिया के ख़िलाफ़ बनती है ना, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया के ख़िलाफ़ बनती है। तो जब तक इस चीज़ से हम नहीं निकलेंगे, इंडिया तो पाकिस्तान पे नहीं वो करता कि अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बनाए कि वो पाकिस्तान को देखें ना, वो इकोनॉमिकली चलते हैं, वो चाइना को भी देखते हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन वो अपना फ़ायदा देख हमारी जो पॉलिसी है वो इंडियन सेंट्रिक है और सिर्फ इंडिया तक है, तो वो फिर ये कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया तो शायद चाहता हो लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। बहुत फायदा हो सकता है इसमें। ऐसे ही है, डिप्लोमेटिकली ये स्ट्रोंग हो जाएंगे, तिजारत बहुत से फ़ायदे होंगे। देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं, उनको मतलब किसी किस्म का टेंशन नहीं है, वो इस तरह की स्टेट है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है इकोनॉमिकली, तो मतलब वो मदद कर सकते हैं दुनिया में किसी की भी, हम नहीं कर सकते। हमें तो खुद की मदद चाहिए हमें तो। हम तो इस टाइम बिल्कुल लाचार हुए हैं ना। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? सियासतदानों को एक तरफ रखें, आपकी अपनी राय क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से कोई हल निकलना चाहिए। सबसे पहले तो कश्मीर इशू रिजोल्व होना चाहिए किसी तरह से। बिल्कुल इंडिया के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो साउथ एशिया में हम उसका भी फ़ायदा तरक्की हमें कर ही सकते होगा। हैं ना। उसका फ़ायदा हमें ही होगा क्योंकि हमारे कुछ जैसे कि हमारे जो इंडिया की तजारत अच्छी हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी इंडिया के साथ शुरू हो जाएगी, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारी आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। आप देखें पहले जब हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे, ट्रेड थी, यहाँ पर कितना सामान इंडिया से आता था। सही है, सही कह रही हैं आप। तो ये तो हुक्मरानों को करना चाहिए ना, मतलब हमारे तो टेबल यहाँ पे टॉक्स हों किसी तरह से भी। ये इशू जो मेन इशू है वो सिर्फ कश्मीर इशू है ना, इससे रिजोल्ट जब तक ये नहीं होता तो साउथ एशिया में पीस नहीं हो सकता ना। तो फिर कश्मीर का मसला तो कोई भी हल नहीं करना चाहता ना, क्योंकि कश्मीर का इस वक्त जो है मसला, अगर हम उस पर बात करें तो कश्मीर पर तो इस वक्त पूरी तरह से इंडिया काबिज है। इंडिया ने पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। तो हम आज तक 75 सालों के लिए कश्मीर के लिए ना कुछ कर सके हैं, ना कुछ आगे कर सकेंगे सिवाय नारेबाजी के और 5 फरवरी को जल्द से जुलूस निकालने के। तो कश्मीर का मसला तो भाई हल नहीं होने ये वाला। कर सकते हैं, मुशर्रफ के जो 4th पॉइंट एजेंडा था वो फिर इंट्रोड्यूस करवा दें। अच्छा, टेबल टॉक्स तो हो ना किसी तरह से, तो वो सही था। दोनों हुकूमतें मिलें, कश्मीर भी मिले, तीनों बैठ के कोई ना कोई इसकी पॉलिसीज़ बनाएं, फिर बाद में रेफरेंडम करवाएं। लेकिन ये है कि इंडिया अब इस पे एग्री नहीं होगा, तो ज़ाहिर सी बात है इसका कोई और ही हल निकलना है, तो वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा तस्लीम, जो भी होता है। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा और सुना कि किस तरह तुर्की की आवाम के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम भी इंडियन आर्मी को, इंडिया की आवाम को और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में तुर्की और शाम का साथ दिया। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।